میرے والدین کی یہ حسرت تھی کہ اللہ ایک بیٹا بھی دے دیتا تو بڑھاپے میں کوئی ان کا دکھ بانٹنے والا ہوتا۔ خدا نے ان کی یہ آرزو پوری کر دی اور ادھیڑ عمری میں بیٹا دے دیا، جس کا نام انہوں نے عمر حیات رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ بڑھاپا محفوظ ہو گیا، مگر سب کچھ ہی الٹ ہو گیا۔ عمر حیات کے آنے سے گھر میں اجالے کی بجائے اندھیرا ہو گیا۔ میری ماں نے اس لاڈلے کو بہت پیار دیا، ابا بھی اسے کچھ نہیں کہتے، یوں وہ بچپن سے ضد ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں اسکول سے بھاگ نکلا، محلے کے 2 آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ جو عمر میں اس سے بڑے تھے انہوں نے اس بھولے بھالے بچے کو ٹریک کر لیا۔ ابا کو فکر لاحق ہو گئی اور وہ بیٹے پر سختی کرنے لگے، مگر ماں آڑے آ جاتی اور عمر حیات کو ہمیشہ بچالی لیتی۔ والد سمجھاتے تو جھگڑنے لگتے۔ اللہ نے منتوں مرادوں سے یہ نعمت دی ہے اور تم بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں کی عاقبت نااندیشی سے بچے کا کھانا خراب ہو گیا۔ عمر حیات 17 سال کا تھا تو والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ نام نہاد غیرت۔ ان کی وفات کو 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ اس کو جیل ہو گئی۔ ایک رات کسی جوئے کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا، میرا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ یوں وہ حوالات چلا گیا۔ 3 دن تک خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ اماں فکر میں ہلکان تھی کہ نہ جانے اس پر کیا بیتے گی جو گھر کا راستہ بھول گیا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ محلے کا ایک شریف آدمی تھا جو ابا مرحوم کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ تمہارا لڑکا حوالات میں ہے، کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اماں نے تو کلیجہ تھام لیا، اب ہی کسی طور پر عمر کو رہا کرانے کی کچھ تدبیر کرو۔ بہن جی یہ کام میرے بس کا نہیں، تو تم اکبر صاحب کے پاس جاؤ، وہ محلے کے صاحب حیثیت آدمی ہیں اور تمہارے مرحوم شوہر کا احترام بھی کرتے تھے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اماں کا تو سکون جاتا رہا۔ سر پر برکھا ڈال روتی روتی اس دم اکبر صاحب کے گھر تھوڑی شومِ قسمت کہ وہ کسی کام سے کراچی گئے تھے۔ یہ آنسو پونچھتی گھر آ گئی۔ 3 دن بعد اکبر صاحب کی بیگم نے ملازم لڑکی کو بھجوا کر کہلوایا کہ آ کر بات کر لوں۔ اماں پھر بھاگ گئی۔ اکبر صاحب نے بات سنے تسلی دی اور تھانے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ FIR کٹ چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی، مگر پولیس نے مزید تفتیش کی تو اور بھی کئی راز کھلے۔ چھوٹی موٹی چوریاں بھی میرے بھائی کے کھاتے میں تھی کہ دیگر کئی غلط سلط کاموں میں یہ لوگ ملوث تھے۔ نام نہاد غیرت۔ اکبر صاحب کا اثر و رسوخ کام نہ آیا اور میرے بھائی کو جیل ہو گئے۔ ابا کی قبر کی مٹی گیلی تھی کہ یہ آفات پڑ گئی۔ اس کے بعد حالات مزید خراب سے خراب ہو گئے۔ گھر میں ابا ہی کمانے والے تھے۔ میں نے FA کر لیا تھا۔ امی نے اکبر صاحب کی بیوی سے کہا بیٹا تو جیل چلا گیا، اگر آپ صبور کی کہیں نوکری لگوا دیں گے تو ہمارا چولہا چلتا رہے گا۔ اس بیچاری نے شوہر کی منت سماجت کی تو انہوں نے اپنی ایک دوست رمضان صاحب کے نام سفارشی خط لکھ کر دیا، کہا کہ بچی سے کہو ان کے پاس چلی جائے۔ یہ میرے دوست ہیں، امید ہے میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اماں نے خط لا کر مجھے دیا اور میں اگلے دن ہی گھر سے نکل پڑی۔ میں 2 بجے تک ان کے آفس پہنچ گئی۔ یہ والد کی وفات کے بعد میرا گھر سے پہلا قدم تھا۔ آفس بہت شاندار تھا،
सिफारिशी खत मैंने चपरासी के हाथ रमजान साहब को भिजवाया। चंद मिनट बाद चपरासी ने आकर बताया कि साहब ने आपको अंदर बुलाया है। धड़कते दिल के साथ में उनके कमरे में पहुंची तो उन्होंने एक नजर मुख पर डाली और कहा कि बैठ जाइए। मैं इनके सामने पड़ी कुर्सी पर सहमी सी बैठ गई। उन्होंने मेरी असनाद पर सरसरी नजर डाली और फिर किसी साहब को बुलाया। वो भी 2 मिनट में हाजिर हो गए। कहा कि उनके लिए लीटर टाइप कर दो और कमरा बता दो। फिर मुझसे मुखातिब हुए, तुम्हें अहमद साहब काम समझा देंगे, चलो आज से ज्वाइन कर लो। यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मुलाजमत मिल जाएगी। अपनी खुशकिस्मती पर मैं हैरान थी। अहमद साहब ने मुझे कमरा दिखाया और कहा, फिलहाल आपका काम फाइलों को दुरुस्त करके रखना है। मैंने काम समझ लिया, चाहो तो आज 2 बजे जा सकती हूँ, लेकिन कल 4 बजे तक ड्यूटी देना होगी। जी सर, मैंने तो अल्फाज कहे और कुर्सी पर बैठ गई। जरा देर बाद भी चपरासी मेरे लिए चाय लेकर आ गया। कहने लगा, मेरा नाम अरमान खान है, नाम निहाद गैरत। मैं यहाँ 5 साल से हूँ। साहब बहुत अच्छे मेहरबान आदमी हैं, मगर लापरवाही पसंद नहीं करते। कुछ देर बाद अहमद साहब मेरे कमरे में आए तो उनके हाथ में तकर्रुरनामा था। मेरे हवाले किया और बोले कि पढ़कर 2 बजे तक भिजवा दे। जाते मैंने सरसरी नजर डाली, लीटर पर डाली तो तनख्वाह तवक्को से बढ़ गई थी। मैंने इस वक्त साइन कर दिए। बहुत खुश थी। घर आ गई, अम्मी को फिक्रमंद पाया। बोली, सुबह गई, दोपहर को आ रही हूँ, इतनी देर क्यों कर दी? मैंने कहा, मुझे मुलाजमत मिल गई। अम्मी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो कोई काम तो सीधा हुआ। मैंने अम्मी के गिले में बाहें डाल दे। वो खुश थी, मगर मैंने महसूस किया कि उनकी इस खुशी में एक अजीब सी उदासी थी। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। घर में सिर्फ हम ख्वातीन थीं। ले देकर अकबर साहब थे, जो 2 माह बाद उमर से मुलाकात के लिए कभी कभार अपने ड्राइवर या किसी अहलकार को भेज दिया करते। खुद वो बहुत कम जाते थे, अलबत्ता जेलर से फोन पर उमर के बारे में राब्ते में रहते। जब मैंने ड्यूटी संभाल ली, कंपनी के मालिक की इनात देखकर हैरान हो गई। सोचती थी, क्या मालिक इस कदर मेहरबान और अच्छे हो सकते हैं। एक दिन वो ऑफिस में मुआयने पर आए। मैं काम में गुम थी। 2 मिनट कमरे में ठहरे और चले गए। उनके साथ अहमद साहब भी थे। वापस जाने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। मैं समझी मुझसे कोई गलती हो गई। डरते डरते उनके सामने पेश हो गई। वो तन्हा बैठे थे। पूछा, मिस सबूर, काम में कोई मुश्किल तो नहीं? मैंने कहा, जी नहीं, काम बिल्कुल आसान है। कहने लगे, दरअसल अकबर मेरा अच्छा दोस्त है। मैंने उनकी सिफारिश पर तुम्हें रखा है, इसीलिए चाहता हूँ तुम्हें कोई परेशानी ना हो। फिलहाल ये काम दिया है, बाद में कोई दूसरा काम दे दूंगा ताकि तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा जाए। नाम निहाद गैरत। मुझे लगा वो तसल्ली दे रहे हैं ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए। मैंने उनकी बातों को शफकत पर महमूल किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया। मिस सबूर, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर पोस्ट निकाल चुका हूँ। अपने कमरे से मुल्हका हिस्से की जानिब इशारा किया। आज से आप यहाँ बैठेंगी। अहमद साहब आपको काम सिखा देंगे। आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देंगी।
मुझे उनकी ये इनायत पसंद नहीं आई। सोचा यहाँ हर वक्त उनकी नजरों के सामने रहूंगी। बेशक दरमियान में शीशे लगे थे, लेकिन इस तरह वो जब चाहते मुझे देख सकते थे। मैंने खुद को बहुत इनकम्फर्टेबल महसूस किया, मगर दिल की कैफियत को जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे नौकरी तो करना ही थी। एक रोज रमजान साहब अपना नया प्रोजेक्ट दिखाने के बहाने मुझे अपने घर ले गए। कहने लगे, मिस सबूर, आप यहाँ चंद मिनट बैठे, मुझे एक जरूरी फाइल लेनी थी तो यहाँ आना पड़ा। बस अभी चलते हैं। नाम निहाद गैरत। तब तक चाय का एक कप एंजॉय कर लें। थोड़ी देर बाद वो हाथ में एक फाइल था। मैं आगे और बिला तकल्लुफ मेरे पास सोफे पर बैठ के कहने लगे कि आपने मेरा घर देखा, कितना सूना सूना और खाली है। मेरी बेगम वफात पा चुकी है, एक बेटा है। इसे मैंने कराची की एक बहुत आला तालीमी इदारे में दाखिल करवा दिया है। एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, मैं तन्हा जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे हालात भी मुझे अकबर साहिब की ज़बानी मालूम हो चुके हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे एकदम शॉक लगा, क्योंकि वो मेरे वालिद के बराबर थे। सोच भी नहीं सकती थी कि वो अचानक ऐसी बात कह देंगे। मैं 19 साल की थी और वो 40 से 2-3 साल ऊपर ही होंगे। इस वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं था, क्योंकि मैं उनके घर पर थी और अकेली थी। बेशक मुलाजिम मौजूद थे, ताहम ऐसी सूरत हाल में दानिशमंदी का तकाजा यही था कि उनसे तमीज से बात करूं। मैंने कहा कि इस मामले पर वालिदा के बगैर बात नहीं कर सकती। इनसे मशवरा करके आपको जवाब दूंगी। बोले, ठीक है। इनसे शादी किसी तौर पर मुझे मंजूर नहीं थी। अगले दिन डाक से इस्तीफा के इरसाल कर दिया। यूं ये मुलाजमत छूट गई। सोचती थी कि अगर दरमियान में अकबर साहिब का हवाला न होता तो मुमकिन था कि रमजान साहिब कोई और बात कर जाते। वालिदा को बता दिया कि बास मुझसे शादी के आरज़ूमंद हो गए थे। मैंने उन्हें वालिद की तरह एक शफीक हस्ती समझा था। अब उनका सामना करना मुहाल है। उम्मी ने कहा, ठीक है बेटी, मुझे तुम्हारी खुशी से अजीज कुछ नहीं है। ठीक है, रिस्क कहीं और से मिल जाएगा। मैंने अपनी मुश्किल का एक सहेली से तज़किरा किया। इसने बताया, मेरी वालिदा के एक अजीज को अपने बच्चों के लिए एक उस्तानी दरकार है। पैसे वाले लोग हैं, माकूल पैसे अदा करेंगे, मगर उनके घर जाकर 3 घंटे ट्यूशन देना होगी और आमदोरफ्त का बंदोबस्त भी खुद करना होगा। वो आने जाने का किराया भी अलबत्ता दे देंगे। मैं ये ट्यूशन करने पर तैयार हूँ। कुछ न होने से कुछ हाथ आना बेहतर है, क्योंकि वालिदा और छोटी बहन तो घर चलाने के लायक नहीं है। अब मैंने नौकरी भी छोड़ दी है कि तहनीत अगले दिन मुझे रिश्ते के मामू के घर ले गई। वो अच्छी ट्यूशन दे रहे थे। शाम के वक्त पढ़ने जाना था, क्योंकि सुबह के वक्त बच्चे स्कूल जाते थे। मैंने कबूल कर लिया। जहां उनका घर था वहां नजदीक ही बस स्टैंड था। इस सहूलत को गनीमत जाना कि फी अलहाल आमदनी का कोई जरिया तो निकल आया। खातून खाना से बातचीत होगी। अगले दिन से मैं ट्यूशन पढ़ाने जाने लगी। एक दिन ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी कि मुझे अपने मोहल्ले का एक नौजवान आकिब नजर आ गया। वो मोटरसाइकिल पर था और मैं बस के इंतजार में खड़ी थी। वो खालबे दफ्तर से अपने घर जा रहा था। नाम निहाद गैरत।
ये मगरिब का वक्त था। आकिब ने मुझे देखा तो मोटरसाइकिल करीब रोकी और पूछा, क्या घर जाने को यहाँ खड़ी हूँ? मैंने जवाब दिया, हाँ। कहने लगा, आज इस तरफ कुछ हंगामा हो किया है। शायद बसों की हड़ताल है। तुम कब तक खड़ी रहोगी? अंधेरा होने लगा है, मेरे साथ चलो। वो मोहल्ले का शरीफ लड़का था। मेरी वालिदा की इसकी वालिदा से दोस्ती थी, लिहाजा मैं उसके साथ बैठ गई। इसने मुझे घर के करीब उतार दिया। अम्मी को बताया कि ये मामला हुआ। वालिदा ने कहा, बेटी, कुछ दिन पहले इसकी माँ ने आकिब के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मैंने अभी सोच विचार में थी कि तुमने ये बात बता दी। चलो फिर ये भी बता दो कि अगर मैं आकिब की माँ को तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कह दूँ तो तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? मुझे आकिब अच्छा लगा था, लिहाजा माँ से कहा, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आपकी पसंद पर राजी हूँ, मगर उनसे पूछ लें क्या वो उमर भाई की रिहाई तक हमें ये मोहलत देंगे, क्योंकि मैं उनके आने तक घर से नहीं जा सकती। अम्मी ने कहा कि वो ये मोहलत देने को भी तैयार हैं। शादी की तैयारी के लिए उनको भी 1 साल चाहिए। वालिदा की इस बात से मेरे दिल को सुकून हो गया। 2 दिन बाद ट्यूशन पढ़ा कर लौट रही थी कि आकिब फिर आ गया। कहा कि ये सुनसान सा इलाका है, तुम्हें सड़क तक आते हुए 10 मिनट लग जाते हैं। बस के इंतजार में खड़ी रहूंगी तो रात हो जाएगी, यही सोचकर मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वालिदा मुझे रिश्ते का बता चुकी थी, समझ चुकी थी कि आकिब की भी यही मर्जी है, इसीलिए लेने आ गया। अंधेरा बढ़ रहा था, सर्दियों के दिन थे। मैंने आफियत जानी कि आकिब के साथ ही चली जाऊं। मुझे भी चंद मिनट का रास्ता बहुत खिलता था। रास्ते में आकिब ने बताया कि उम्मी तुम्हें बहू बनाने का इरादा रखती है। मुझे ये बात बताई तो सोचा, क्यों ना मैं रोज लेने आ जाऊंगा। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो ठीक है। नाम निहाद गैरत। आकिब, मुझे क्यों एतराज होगा? वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है यहाँ। खैर, अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एक गाड़ी हमारे सामने से आती दिखाई दी, जिसकी लाइटें हम दोनों पर पड़ी तो आकिब ने मोटरसाइकिल दाएं तरफ कर ली। तेज रोशनी की वजह से बस इस कदर देख पाई ये गाड़ी इसी घर की थी जिस घर में ट्यूशन देने जाती थी। कौन चला रहा था ये देख नहीं पाई। खैर, आकिब रोज मुझे मगरिब के वक्त लेने आने लगा। एक रोज उम्मी ने कहा, बेटी, तुम्हारा भाई जेल से आ रहा है, अब तुम जरा ध्यान रखा करो। ऐसा ना हो कि किसी दिन वो देख ले और कोई फसाद डाल दे। बेहतर है कि ट्यूशन छोड़ दो। मैंने कहा, अम्मा, छोड़ दूंगी। भाई को घर तो आने दो, वो आते हैं कमाने तो नहीं लगेगा, हम खाएंगे कहाँ से? क्या अपने घर का खर्चा भी आकिब की माँ से मांगेंगे? खुदा न करे, कैसी बातें करती हो। मैंने तो वैसे ही कहा था कि उमर का मिजाज जानती हूँ। माँ का खदशा भी सही था, क्योंकि उमर इंसान नहीं हैवान बनकर आया था। अब तो नशा भी करने लगा था, वो बहुत बेहिस हो गया था। अम्मा ने सोचा था बेटा आ जाएगा तो सबसे पहले घर की बदहाली को महसूस करेगा, कमाने की तरफ ध्यान करेगा, मगर ऐसा ना हुआ और मुझे मजबूरन पढ़ाना पड़ा। एक रोज में पढ़ाने गए बच्चे और माँ बाप घर पर नहीं थे। बच्चों का चचा मौजूद था। वापस जाने लगी तो उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। कहने लगा, जरा देर को दम तो ले लो, दूर से आई हो, ऐसी भी किया जल्दी, भाभी और बच्चे आने ही वाले हैं,
नाम निहाद गैरत। मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाना है, उनका इंतजार नहीं करना। बड़ी शरीफ बनती हो ये तो बताओ, इस दिन सड़क किनारे अंधेरे में तुम किसके साथ बाइक पर थी? इनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा इस बात से आपका क्या सरोकार? खैर मैंने भी इसे बता दिया कि वो मेरा मंगेतर था, और ये कहकर मैं जल्दी से घर से निकल आए। पता नहीं आकिब इस वक्त मुझे लेने कैसे आ गया था। मैं उसके बाइक पर बैठ गई, मगर रास्ते में हमें एक आदमी ने रोक लिया। वो आकिब से मुखातिब हुआ, ओ ये क्या तेरी बहन है कि सिरेरा इसको उचक लिया है? मेरी बहन नहीं है, शायद तेरी हो, आकिब ने गुस्से से जवाब दिया। इस जगह घने दरख्तों की वजह से अंधेरा सा हो गया था, स्ट्रीट लाइट भी ऑफ थी। मैंने चेहरे पर निकाब कर लिया था। जिसने मोटरसाइकिल रोकी वो मुझे पहचान नहीं सका, लेकिन मैं उसकी आवाज से पहचान गई कि ये मेरा भाई उम्र है। इसी दम स्ट्रीट लाइट ऑन होगी, रोशनी होगी, तो मैंने निकाब उलट दिया। दो गुंडे आकिब से उलझ रहे थे। उमर ने मुझे बाजू से पकड़ा। इसका इलाका मुझे घसीटकर गाड़ी की तरफ ले जाने का था। निकाब उलटने से मेरी सूरत पर रोशनी पड़ गई। इसने मुझे पहचान लिया तो हैरान हो गया। तुम यहाँ क्या करने आई थी? इस वक्त वो लड़का किधर ले जा रहा था? तुम्हें? मैंने कहा ये आकिब है, खुदा ने मुझे इन गुंडों से बचाने को उसे उधर भेजा है। और तुम मेरे सगे भाई हो, शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या समझकर तुम मेरी तरफ बढ़े थे अपनी बहन को गंडों के हवाले करने के लिए? ये अल्फाज आकिब पर अंगारों की तरह पड़े। उसने मुझे एक जोर का थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, बेशर्म लड़की, शर्म नहीं आती? तुम रात के इस पहर गैर लड़के के साथ बाइक पर बैठकर आ रही थी, नाम निहाद गैरत। उधर उमर की गिरफ्त में मेरा बाजू था, उधर दो घंटे आकिब को बीट रहे थे। जब उसके चेहरे से खून बहने लगा वो उसे छोड़कर हमारी तरफ आए। हाँ भाई, शिकार आ गया। उमर, बकवास बंद करो, उम्र गरा और दफ हो जाओ यहाँ से, इसने इंडिपिट कर उनसे कहा। वो हैरान होकर उसका मुंह तकने लगे। फिर एक ने दूसरे से कहा, अबे क्या हो गया है इसे? हाँ तो बहन है मेरी। उनसे बात करने के बाद वो मुझे घर ले आया। उधर आकर वो अपने होश में नहीं था। बावर्ची खाने की तरफ दौड़ा छुरी उठाने को। आज तो मैं उसका खात्मा करके रहूंगा। माँ समझ गई कि आकिब के साथ मुझे मोटरसाइकिल पर उमर ने देख लिया था। जिस बात का उनको डर था वही हो गया। मैंने मंगनी कर दी है। इसकी आकिब मंगेतर है, सबूर का ट्यूशन पढ़ाने जाती हैं। ये बेचारी हमारा पेट पालने जाती है। ना कुछ होश करो। अम्मा सर पीटने लगी। भाई के हाथ में छुरी देखकर मैं तो डर के कमरे में जा घसी, अंदर से कुंडी लगा ली। उमर उन्हीं से लड़ने झगड़ने लगा। जब वो दोनों गुंडे गाड़ी में बैठकर चले गए तो आकिब के पास करीबी बंगले से निकलकर एक शख्स आया। वो अपनी बालाई मंजिल से ये सारा तमाशा देख रहा था। उसने ही उसे घर तक पहुंचाया। भाई अपने दरवाजे की दहलीज पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। माँ ने इसे बता दिया था कि ये हमारे पड़ोसी तुम्हारी जेल जाने के बाद सामने वाले घर में आए। इस लड़के की माँ ने सबूर का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा तो मैंने मंगनी कर दी। सबूर अब आकिब की मंगेतर है तो जेल में बैठा था, कौन लेने जाता इसे?
मैं ही लेने के लिए भेजती हूँ आकिब को। माँ की उन बातों पर उम्र कब कान धरने वाला था। आकिब को देखते ही इसने इस पर छुरी से हमला कर दिया। वो बेचारा नहीं था, क्या मुकाबला करता। जख्मी तो पहले से था, अचानक हमले की ताब ना लाकर गिर पड़ा। यूं मेरा बेहिस भाई, जिसको ये गैरत ना थी कि कमाकर खिलाता, नाम निहाद गैरत की वजह से एक नेक इरादा रखने वाले लड़के का कातिल बन गया और लंबी मुद्दत के लिए जेल चला गया। मेरा घर बसाने, सुकून से जिंदगी गुजारने का ख्वाब हमेशा के लिए चिकनाचूर हो गया। बिलाखिर में एक नर्स बन गई, बाकी जिंदगी मरीजों की देखभाल में कट गई। यहाँ तक कि जब भाई सजा काट कर आया तो माँ मर चुकी थी। छोटी बहन की मैंने शादी कर दी थी, नाम निहाद गैरत। उमर जेल से ऐसा मर्ज लगा कर निकला था कि 1 साल भी जी ना पाया। इसको अस्पताल में दाखिल करा दिया, मगर उसका मर्जला इलाज था। बिलाखिर मेरे इकलौते भाई ने मेरे ही हाथों में दम दे दिया। हालांकि वो मेरे ख्वाबों का कातिल था, मगर उसके मरने पर मैं फूट फूट कर रोई थी। अब मैं अकेली जीने पर मजबूर थी, नौकरी करती रही। यहाँ तक कि बुढ़ापे ने आलिया शुक्र के सरकारी अस्पताल में नौकरी मिली थी। आज पेंशन ही मेरा सब कुछ है कि 2 वक्त की रोटी बगैर किसी के आगे हाथ फैलाए मिल जाती है।